नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअली अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूँ, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स वाज बेस्ड अपॉन द लॉज ऑफ मोशन, and with the help of the classical mechanics we can easily explain the motion of the macroscopic bodies. For an example, if a stone is falling from the hill, or if we are discussing about the movement, the motion of planet around the sun, these all are the microscopic bodies, stone, planet. So if we want to study about the motion of such type of large bodies, they can be explained with the help of the classical mechanics. But this classical mechanics was not able to explain the motion of microscopic particles like electron or atoms or molecules. So to explain the motion of small bodies, microscopic particles like electron, atom or molecules, a specific mechanics was proposed which is called as quantum mechanics. With the help of quantum mechanics, we can easily explain the motion, the movement of microscopic particles like electron, and the branch of science which deals with the study of the movement of microscopic particles is called as quantum mechanics. That branch is called as quantum mechanics. Now we have to discuss about what is quantum mechanics, the branch of science which deals with the study of motion of microscopic particles is called as the quantum mechanics. And the second thing is that if we are discussing about the classical mechanics was not able to explain the dual behavior of the matter or microscopic bodies. It means they cannot explain the concept of dual behavior of matter as well as Heisenberg's uncertainty principle. But if we are discussing about the quantum mechanics, with the help of quantum mechanics we can easily explain the dual behavior of matter as well as Heisenberg's uncertainty principle. So we can also say that the branch of science which deals with the study of dual behavior of matter is called as quantum mechanics. So we can say the branch of science which deals with the study of dual behavior of matter is called as quantum mechanics. Now the next topic is Schrodinger's wave equation. Schrodinger's wave equation. Schrodinger's wave equation. If we are discussing about Schrodinger's wave equation, we know well. See, what is Schrodinger's wave equation? To explain the quantum mechanics, there was a scientist named Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger in 1926. He developed this specific mechanics. So quantum mechanics was developed by a scientist named Erwin Schrödinger, and this particular mechanics, that is quantum mechanics, is based upon it is based upon two types of behavior of microscopic particles, that is the particle like behavior as well as wave like behavior. हमें पता है कि जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनमें दो टाइप का बिहेवियर होता है, पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी होता है और वेव लाइक बिहेवियर भी होता है। तो इन दोनों बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे अर्विन श्रोडिंगर, उन्होंने एक इक्वेशन को प्रपोज किया विच इज कॉल्ड एज द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा। द इक्वेशन वाज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर e minus v into psi is equal to 0. So this was an equation which was given by Erwin Schrödinger called as Schrödinger's wave equation. See students,
Why this equation was proposed by Erwin Schrödinger? If we want to explain the motion of electron in three-dimensional space around the nucleus, to explain the motion, the movement of electron around 3D space around the nucleus, Erwin Schrödinger gave an equation called as Schrödinger's wave equation. Question is now what this equation generally represents. So here if we are discussing about this equation, here psi represent the amplitude of wave. Psi represent the amplitude of wave और it is called as wave function. yes, को हम लोग wave function कहते हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ ये जो x, y और z है ना, ये थ्री कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका z कोऑर्डिनेट है. z कोऑर्डिनेट इसके बाहर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर जो E है ना, E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द पोटेंशियल एनर्जी, E इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V is potential energy, M that is mass of electron, H means Planck's constant. यहाँ पर ये जो आपका del square psi upon del x square है, it represents the second deviation of psi with respect to x axis. Del square psi upon del y square represents the second deviation of psi with respect to y axis. Del square psi upon del z square represents that the second deviation of psi means second deviation of wave function along the z axis. अभी second deviation का मतलब मैं बताना चाहूंगा. deviation delta या del represents deviation. deviation means change. psi का मतलब wave function और amplitude of wave. ये हम wave के characteristics में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया. अब यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है Schrodinger's wave equation, it is used to explain the three-dimensional motion of microscopic particles around the nucleus. ठीक है, अभी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H कैप साई इज इक्वल टू E साई. ये आपकी इक्वेशन है H कैप साई इज इक्वल टू E साई. यहाँ पर जो H कैप है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है which is called as Hamiltonian ऑपरेटर. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. ठीक है, और ये जो आपका E है, E एज वेल एज साई, अगर हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम E की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू और वेव फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई. ये जो आपका साई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड साई स्क्वायर. साई का और साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बच्चों, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ हियर इन बिटवीन साई, ये आपने साई लिया है, ये साई है और ये आर है, आर. तो साई और आर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा मिलता है. यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस. आपको ग्राफ ऐसा मिलता है. तो आपने देखा इससे पहले यहाँ पर तो आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये तो आपने एक्स एक्सिस लिया है, ये आपने वाई एक्सिस लिया है. तो यहाँ पर साई की वैल्यू पॉजिटिव है इस इधर से ऊपर और इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है. तो यहाँ पर आपने देखा जो साई है ना वो दोनों टाइप की वैल्यू शो कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी. तो कहने का मतलब है साई क्या रिप्रेजेंट करता है, साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, as well as it also represents the probability of finding the electron around the nucleus. तो ठीक है, अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव तो होगी. लेकिन अगर हम यहाँ पर साई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साई की पॉजिटिव वैल्यू भी आपको मिल रही है और साई की नेगेटिव वैल्यू भी मिल रही है. तो साई की जो नेगेटिव वैल्यू आपको मिली वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो कैसी है, वो नेगेटिव है. लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साई है ना, साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है.
तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम करते क्या है, हम साई की जगह पर साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर आप साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस। आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ये आपको ग्राफ मिलेगा। तो आपने देखा कि if you are plotting the graph between psi square as well as r, then always the probability of finding the electron is found to be positive। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर आकर के इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो हुई, उसके बाद फिर बढ़ रही है और फिर घट रही है, बट इट इज नॉट शोइंग द नेगेटिव वैल्यू ऑफ साई। सो साई स्क्वायर हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट्स द probability of finding the electrons around the nucleus. It is psi square which represent the probability of finding the electron around the nucleus, not psi। psi represent नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई स्क्वायर और साई का सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसमें एक और बहुत छोटी सी बात है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू मेक टू अंडरस्टैंड इज एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है उसको देखिएगा। अगर हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो if we solve the Schrodinger wave equation for hydrogen atom, अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने पर we can easily find out the value of energy, the energy of electrons, the energy of hydrogen atom we can easily calculate by solving the Schrodinger's wave equation, and this value of energy that you are getting from the Schrodinger wave equation is called as eigen value। इसको eigen value कहते हैं, और इस eigen value से, इस एनर्जी से जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन होता है psi, उसको बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एज eigen फंक्शन। इसको eigen फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो eigen value दैट इज E, दूसरा होता है eigen फंक्शन। eigen value is the energy associated with the hydrogen atom, is it okay? And eigen function is the wave function which is associated with the eigen value। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, eigen function, eigen value दोनों को हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाल सकते हैं। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो आपकी वैल्यू होती है, द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो भी आप एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है एक क्वांटम की एनर्जी का n टाइम्स मल्टीपल होती है या इंटीग्रल मल्टीपल होती है। So the quantized value of energy and corresponding wave function of electrons are characterized by the set of three numbers। जो भी आपकी quantized value of energy होती है, as well as जो corresponding wave function होता है, they can be characterized with the help of the set of three numbers which are called as quantum numbers। इनको quantum number कहते हैं। तो quantum number होते क्या है, मैंने ये बताया, हाइड्रोजन के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए जो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, एज वेल एज द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री सेट्स ऑफ नंबर्स कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। बाद में एक और क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आजकल जो हम टोटल क्वांटम नंबर मानते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक है ना, इसका ड्रॉबैक भी है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है ना, उससे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं उनके लिए हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी निकालनी है या या करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालना है, तो हम उसको नहीं निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कॉल्ड एज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया।